Can you see? Yes, Bantaji. The summary of the noble info path. One, Yeah. right view or right understanding. Right thought, Sama Sankaba, right speech, Sama Vaja, right action, Sama Kamanda, right livelihood, Sama Ajiva, right effort, Sama Vayama, right mindfulness, Samasadi, right concentration, Sama Samadhi. Noble A4 path now. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Right view, right thought, right speech, right action, right livelihood, right effort, right mindfulness, right concentration. These are the middle path. Do you know in Dhamma Jagga Bodhana Sutta? Yes, Bantaji, we know that. This is the Yeah. path. To attain the Nibbana, ultimate peace, to get ultimate peace, we need to practice these noble effort paths, middle way, Majjhima Patipada. In Pali, Majjhima Patipada, right view or right understanding, Samadhi. Sama means right, Dati means view or understanding. Okay? Yes, Bantaji. The first one of middle way, middle path is right view or right understanding. In Pali, Samadhi. There are now I would like to explain you the right view. There are three kinds of right view. First, Kamaskada Samadhi. Right view regarding karma. No. In Hindi, no, karma. In Bali, karma. Right view regarding karma. Only two things, wholesome and unwholesome. In Pali, kusala, agusala, good deeds and bad deeds. Now, two things, only two things. Kusala, agusala, or wholesome, unwholesome, or good deeds and bad deeds. Actions performed by all beings, living beings. Not only human, but also animals or animals, so many living beings are their own properties. That Osan Osan always accompany or follow them wherever they may go. They may wander, they may go in many existences. People or living beings always doing wholesome and wholesome except sleeping. Bodily actions with bodily actions, verbal actions, and mental actions. Doing, always. That now, wholesome and wholesome actions now always accompany them wherever they may go in many existences. That is Kamastakada Samadhi. Understand? Okay, Kammasakada Samadhi. Yes. No. They know people or living beings, wholesome and wholesome actions. The actions follow them wherever they may go. Understand? Yeah. Yeah. Understand very clearly. Oh, if you do good deeds, wholesome actions, oh, the action follow you or redeem you.
Understand? If you do bad deeds, follow you that action. Wherever you go, there's knowing clearly. That is Kama Sakada Samadhi. Understand? Okay, Pataji. And second, Dasa Vutuga Samadhi. Right view in Timidas. No, I will explain you in details. Timidas, what is Timidas? And later I will explain in detail. Next, Chedu Saja Samadhi. Right view of the four truths. Okay, in brief, there are three kinds of samadhi. Kamasagada samadhi, Dasavutuga samadhi, Chetu Saja samadhi. Okay, Chetu me four, Saja me truth no. For truth. Right view of the four truths. Okay, first one, right view regarding karma. Sabbi Sada, Kama Saga, Kama Dayada, Kama Yoni, Kama Bandhu, Kama Pati Sarana, Shankaman Sandi, Kalyananwa, Pabaganwa, Tasa Dayada, Pawai Sandi. Okay. Sabbi Sada, Kama Saga. Only the wholesome and unwholesome actions of all beings, living beings, are their own properties. That wholesome and unwholesome deeds, action, always accompany them wherever they may go. They may wander in many existences. If I have no smartphone, it's my property. Wherever I go, follow with me, no, together with me, this phone. So also, wholesome and unwholesome actions, wherever you go, company, you, wholesome and unwholesome actions. No, all living beings, no, there are 30 kinds of action: bodily action, verbal action, and mental action. Except sleeping times or bodily action, verbal action, mental action, doing, all living beings. That actions accompany them. If you know like that, that is Sabbi Sada Kamasaka. Understand? Yeah. Sabbi Sada. Sabbi me all. Sada me living beings. All living beings. Kamasaka. Their own properties. What kind of properties? Wholesome and unwholesome properties. Maybe your clothes, your money, your car, your motorbike. That is only in this life. This property is temporary, your properties. Wholesome and unwholesome action is your permanent property. Not only this life, but also next existences, next life. Wholesome and unwholesome actions. Kusala, agusala, kodi, padis. Okay? Yeah, Pataji. Sabbi, sada, kama saka. Next, kama dayada. Only the unwholesome and unwholesome actions for all living beings are their inherited properties. Inherited. Do you know inherited? Yeah. Yeah. Dayada. You know your father, mother, your grandmother, grandfather, grandfather, and mother, father give their properties
to their son, daughters, and grandchildren. That is inherited. Properties that always accompany them wherever they may go, in many existences, in many lives. Wholesome and unwholesome actions. No, they are inherited for all living beings. Karma, wholesome and unwholesome action. That is inherited properties. And then there is karma yoni. Only the wholesome and unwholesome actions of living beings are the origin of their wanderings in many existences. This is short. Karma yoni. Now, origin. Karma yoni means origin. Or they are wandering, they are going. Okay, karma bandhu. Karma bandhu. Only the wholesome and unwholesome action of all living beings are their relatives. Do you know relatives? Aunt, father-in-law, mother-in-law, like this, no? Sisters, brothers, sister-in-law, brother-in-laws, like that, relatives. Like that, you are wholesome and unwholesome, you are relatives. Like that, no? Associate that always accompany them wherever they may wander in many existences. Next, karma patisarana. Only the wholesome and unwholesome action of all beings are their real refuge. Sarana, real refuge, wherever they may wander in many existences. You are wholesome and unwholesome, you are real refuge. Maybe your father, mother is Tamurari. You are wholesome and unwholesome in real refuge. Okay. Okay, next. Yankaman, Karisandi, Kalayanwa, Babaganwa, Tasadayada, Bawisandi. If bodily, verbal, and mental actions are performed, whether wholesome or unwholesome, they will inherit that karma throughout many existences. That means wholesome and unwholesome actions you already done. That is, you are inherit. No, throughout many existences. Okay, that is not only short but also long. Kama Saga, Kama Dayada, Kama Yoni, Kama Bandhu, Kama Padisarana, Shankama Sandi, Kalyanawa Babaganwa, Tasa Dayada, Bawisani. Six. There are six kinds of karma. No, Okay. regarding samadhi. Okay, next, no? Yeah. Tribute intimida. Ati Dana, Ati Yatan, Ati Hudan, Ati Sugada, Togadana, Kamana, Palan Wibago, Ati Mada, Ati Bida, Ati Sada, Obaba Diga, Ati Iyan Logo, Ati Barologo, Ati Logi, Samana Brahmana, Samakada, Samabadibana, Ye Imanja Logan, Parancha Logan, Sayan Abinya Saji Kadawa, Owidindi, no Timada. Okay, one. Ati Dana. They are really exist. Thanksgiving or offering or donation, generosity has no cause and its result. If you are no paying or giving anything to humans, to the animal, it has cause and result. Now that is mean result. How do I say? Benefit, have benefits. But some people say, "Oh, that's useless. There's no
result. Offerings no result. That is major deity, not samadhi. Yeah. Samadhi. Oh, if you are generosity, oh, you are very good. It has result. If you give something to other, although that is other people's redeem you, that is effect or result. Or I believe that generosity, that is samadhi, not major deity. Major deity is no need to pay, no need to donate, no need to offer to others. That is major deity. Understand? Yeah. Ati data. Two, ati yatan. They are really exist offering on a large scale as cause and its result. That is me large amount of properties. Ati yatan me offering or donation is a large amount of money or properties. Now, some billionaire, millionaire people, no, millionaire, billionaire, they can offer, they can donate a large scale of money, large amount of money, maybe 1 million, 10 million, they can offer. That is yatan, ati yatan. Also have their result, their effect, benefit. If you believe like that, that is samadhi. No? Now, ati hudan, they are really exist, offering only small scale as cause and its result. That is me, small amount of money, small amount of, properties. Some people, they can offer only 100 rupee, 200 rupee, like that, no, small scale. Maybe 10 rupees, 1 rupee, like that. That is ati hudan. It also have benefit, no, result. It's samadhi. Next for ati sugata, dogata, nakama, namphalan, vibhako. They are really exist, wholesome and unwholesome actions, causes, and their result. Also, some people do wholesome and unwholesome. And then that unwholesome action become as a result. Believe like that, samadhi. Oh, if you do wholesome and unwholesome, good deed, that is no problem, no result. That is majority. Understand? Yeah. Okay, next, 5. Atimada. They are really exist. They go and the evil deeds done to one's mother as causes and their result. We have father and mother, no? Atimada. We have mother. Oh, we look after our mother. If we pay respect to our mother, if we feed to our mother, oh, that is, if we do like that, we have good result, good effect. We believe like that. That is samadhi. Some people says, oh, no need to look after our mother. No need to pay respect our mother to our mother. That is majority. Understand? Next, atipida, pidaji. They are really exist. They go and the evil deeds tend to one's father as cause and their result. Like that. Now, if we some good person, good people, pay respect their mother or their father, but some people they assaulted their father. They, how do I say? They fight. No, they fight their father. It's not good deed, bad deeds. No, bad deeds coming back. Karma, in return. Okay, next 7. Adhisada or babadika.
They are really beings who are born by apparitional rebirth, such as being in purgatory. In Pali, Vedas, Deva, Seka, and Brahma, who cannot ordinarily be seen by men. Some living beings we cannot see our own eyes, such as ghosts. In Hindi, do you know some some people, no, some living beings we cannot see our own eyes. Deities, Brahma, King or Deva, Saka, we cannot see our own eyes. But if you can see with your own eyes, because of your power is very highest by the taking of meditation. But ordinary time we cannot see with our own eyes that kind of uh, living beings have. Now we believe all have like that being. That is Samadhi. Next, Ati Yan Logo. They are really exist this visible world. Now, India, Myanmar, people in Myanmar, animals, or others living beings have. That is in this world, visible world. Ati Yan Logo. We believe that is Samadhi. Ati Logo. They are really exist other worlds where one may arise after death. No, we believe, we Buddhists believe after death we will be born again. No, that is Paralogo. Ayan logo, this life, this existence, ayan logo, this world. Next after death will be born. Paroloco. Yeah, Paralogo. That is, we believe that is Samadhi. But some people, no, they don't believe next life, next existence. No, this life finish like that. If you take other things from other people, no problem, because finish in this life. No, we have next life, next existence. We believe that is Samadhi. But some people, majority, they don't believe another existence. Okay, in another way, on the other hand, they are really exist this human world and the other was. The other one means for lower above 60 was and 20 Brahma was. That is in this life. Or they are really exist this universe consisting of the human world for lower was, 60 was and 20 Brahma was and other was which are infinite in all 8 directions. That is Pralogo. Okay, 10. Ati logi samana paramana samakada samapatipana ye imanja logan paranja logan sayan abinya sajikadawa pavidindi. They are really exist in this human world. Recluses and priests. That is me bandage, no? Guruji, bandage, who currently practice the Dharma and haven't realized this word and the other words. The higher knowledge. Higher knowledge. That is me Sila Samadhi Panya. No? Higher knowledge. Impart that knowledge to others. That is me delivers the Dharma talk. We believe like the in this world have Pandiji who can preach the Dhamma, who can practice the Dhamma, and they give Dhamma talk. Have in this one. That is, we believe like that. That is Samadhi. Okay. Okay. Next, review of the four truths. Dukkha jnana, penetrative insight into the truth of suffering. Penetrative means
realize, penetrated insight, realize no, the truth of suffering. Dukkha. Dukkha samudaya jnana. Penetrated insight into the truth of the origin of suffering. Next, dukkha nirodhi jnana. Penetrated insight into the truth of the cessation of suffering. For dukkha nirodha gamini patipadaya jnana. Penetrated insight into the truth of the path leading to the cessation of suffering. That is right view of the four truths. Suffering, origin of suffering, cessation of suffering, the path leading to the cessation of suffering. No. Penetrating insight. That is me with the Vipassana meditation. We can realize this Four Noble Truths. That is right view of the Four Noble Truths. That is very highest stage. और देखिए बंदी जी जो राइट व्यू के बारे में बताया कि सम्मा दिट्ठी क्या है, जो हम लोगों का मध्यम पटिपटा जो मार्ग बोलते हैं, आर्य अष्टांगिक मार्ग, तो उसमें जो है सबसे पहला ये सम्मा दिट्ठी, दिट्ठी सम्यक दृष्टि होना चाहिए। तो उसको भी 3 पार्ट में कैटेगराइज किया है कि वो प्रज्ञा का पार्ट है। जब तक कि आपकी सम्मा दिट्ठी नहीं होगी, आपको 4 नोबल ट्रुथ के बारे में 4 आर्य सत्यों की जानकारी नहीं होगी, आप पटिसमुपपाद को नहीं जान पाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सम्मा दिट्ठी क्या है? तो बंदी जी ने आज उस पर क्लास ली है। तो उन्होंने डिटेल में बताया कि 3 तरह की सम्मा दिट्ठी है, उसको कैटेगराइज किया है। कम्मस कम्मस कत्ता सम्मा दिट्ठी, इसका मीनिंग है कि राइट व्यू रिगार्डिंग कर्म, मतलब आपके कर्म से रिलेटेड कि आप जो कर्म कर रहे हैं, ओनली 2 थिंग्स, उसमें 2 चीज है, कुशल कर्म या अकुशल कर्म। तो अब कुशल कर्म जानते हैं हम कितने चित्तों से करते हैं, और अकुशल कर्म के हमारे 12 चित्त है। और बॉडीली, बाय वर्बली और बाय कायिक, मानसिक और वाचिक जो कर्म है, 10 तरह के जो अकुशल कर्म है, हम ये परफॉर्म करते हैं। तो अकुशल कर्म हम जो परफॉर्म कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, और कुशल कर्म जो कर रहे हैं, अकुशल और कुशल कर्म ही हम करते हैं। तो इसके बारे में हमें राइट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हम जो कर रहे हैं इसका भी हमें फल मिलेगा। ये भी जो प्रॉपर्टी इन्होंने बोला कि यार ओन प्रॉपर्टी दे, और ये हमारे हमेशा हमारे साथ रहते हैं और ये हमारे साथ जाते हैं। जैसे आज सोनाली है, आप आपकी पर्सनली बॉडी, आप जो कलेक्शन लेके आए, मतलब आप पास से कुछ ना कुछ लेके आए, आज आपको जो रूप मिला है, या जो आप इंटेलिजेंस है, जो आप में जो सोचने समझने की क्षमता है। हम लोग देखते हैं कई लोग बहुत गरीब है, कई लोग बहुत अमीर है, तो कहीं ना कहीं इनके जो कुशल कर्मों का ये कलेक्शन अपने साथ लेके आए, तो ये हमारे साथ कैरी फॉरवर्ड होता है। तो कम्मत्स का सम्मा दिट्ठी का मीनिंग है कि हमेशा अपने कर्मों के प्रति हमें सही समझ होनी चाहिए, सही दृष्टि होनी चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। दूसरा है दस्वत्थकु सम्मा दिट्ठी। तो 10 जो भंती जी ने बताया है, जो वो जो राइट व्यू है, हमें समझना है कि हम जो कर्म कर रहे हैं उससे रिलेटेड है ये। चतुस्थ सम्मा दिट्ठी, तो 4 जो आर्य सत्य है उसके बारे में जानकारी होना। तो 4 जो आर्य के दुख है, पहला आर्य सत्य दुख का कारण है, ये दूसरा आर्य सत्य दुख का निवारण है, ये तीसरा आर्य सत्य। और जो चौथा है कि दुख निरोध गामिनी पटिपदा, कि मतलब ये जो दुख है इससे निरोध करने के, इस दुख को निरोध करने के लिए एक तथागत ने मार्ग बताया, तो उसको क्या कहते हैं? आर्य अष्टांगिक मार्ग। तो ये जो चारों की जब हम अंडरस्टैंडिंग होते हैं, हम जब चारों को समझते हैं, वो भी अनुभव पे, तो रियलाइजेशन होना जरूरी है। तो राइट व्यू ऑफ द 4 नोबल ट्रुथ। तो चतुर्थ सत्य सम्मा दिट्ठी, तो ये भी इन्हें ब्रीफ बताया। आई वांट टू नो अबाउट दिस कम्मा दायरा। Yeah, inherited. ओके। Your हाँ या father, mother या give their property in this only this life. Your property, your own property, who give you not only this life but also next life, next existence. That is your action you have done is your inherited. कत्तो सम्मा दिट्ठी को उन्होंने एक्सप्लेन किया है। तो सब्बे सत्ता कम्म सका,
यहाँ पे हमारी प्रॉपर्टी अगर हम देखा जाए, जैसे हम लोग आज के पास हमारे पास जो भी आज सामान है, चाहे मोबाइल हो, हम लोग ये क्या, ये मटेरियलिस्टिक है, ये भौतिक वस्तुएं हैं, ये हमारे साथ नहीं जाती। हमारे जो कुशल और अकुशल कर्म करते हैं, तो हमारी सच क्या है, रखा है, ये हमारे साथ, ये हमारी ओन प्रॉपर्टी है। अगर आप झूठ बोल के कोई काम करते हैं, किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, तो वो कर्म आपके साथ जाएगा। आपने झूठ बोल के पैसा तो कमा लिया, वो पैसा आपके साथ नहीं जाएगा, वो यहीं छूट जाएगा। अगर आप कोई अच्छा कर्म करते कि आप दान करते, अपना अपना भूखा रह के किसी और को खाना खिलाते हैं, तो वो जो है, अब जो भूखा रहे वो थोड़ी देर की तकलीफ थी, पर वो आगे चल के आपको कुशल कर्म में वो आपको उसका रिजल्ट देगा। तो सब्बे सत्ता कम्मस्कृत, ओनली द होलसम एंड अनहोलसम एक्शन ऑफ ऑल बीइंग्स आर देयर ओन प्रॉपर्टी। और वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। अब जो संसरण कर, अब हमें जो अरहंत की अवस्था प्राप्त करना है, तो अरहंत की अवस्था प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए कि हमारे पुण्य कर्मों का होना जरूरी है। आज आप सबको जो बुद्ध, धम्म और संघ, ये शब्द सुनने मिल रहा है, मनुष्य वो छोड़िए, मनुष्य योनि है, मनुष्य योनि में हमें जन्म मिला, तो किस वजह से मिला कि हमने कुछ तो कुशल कर्म किए। अगर हम बेहोशी में रह के अकुशल कर्म करते जाएंगे, तो फिर निरयपात तो होना ही है, तो बहुत मुश्किल से मनुष्य योनि मिलती है। तो हमारे कुशल कर्मों की वजह से है। तो ये हमारे कुशल कर्म है। तो अब मनुष्य योनि तो मिले, उसमें भी हमें धर्म मिला, बुद्ध धम्म और संघ की शिक्षा है, जो बुद्ध की शिक्षा है, ये जो धर्म है, तथागत का जो धर्म है, और ये जो भिक्षु संघ है, इनसे हमें सीखने मिल रहा है। तो ये हमारे पुण्य कर्मों की वजह से, तो हमने कुशल कर्म किए, तो ये हमारे आज जो हम ये सेशन अटेंड कर रहे हैं, इस पुण्य को आपने अर्जित किया है, इसको आप अंडरस्टैंड कर, तो ये पुण्य भी आपके साथ आगे जाएगा, कैरी फॉरवर्ड होगा। तो ये यही बोल रहे हैं कि हमारी अल्टीमेट प्रॉपर्टी क्या है? हमारी अल्टीमेट प्रॉपर्टी हमारे कुशल और अकुशल कर्म जो हमने किए हैं, इसका जो रिजल्ट है, जो संचय करके रख रहे हैं, कलेक्शन करके रख रहे हैं, यही हमारे साथ हर एग्जिस्टेंस में जाता है। Kamma daira, only the wholesome and wholesome action of all beings are inherent properties that always। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो निहित है, जो भी जो भी हम एक्शन परफॉर्म करते हैं, उसका जो रिजल्ट उसमें निहित है, ठीक है, उसका रिजल्टेंट हमको जो मिल रहा है, वो ही हमारे साथ जाएगा। हम कितनी भी दायदा, जैसे हमारा कम कर्म हमें दे रहा है, ठीक है, दायदा मतलब दे रहा है, जैसे मेरे पापा ने मुझे प्रॉपर्टी दे दी है, मेरे पापा, हमारे पेरेंट्स हमको कुछ शिक्षा देते हैं, कभी मोबाइल दे रहे, मतलब जो उनकी ओन प्रॉपर्टीज है। मम्मी लोग गहने देती है, पापा लोग प्रॉपर्टी देते हैं, और माता पिता शिक्षा भी देते हैं। तो इसी तरह हमारे कर्म भी हमारे दायद है। हम जैसा कर्म करेंगे वो हमें उस तरीके का बनाएंगे, उस तरीके को रिजल्ट देंगे, और हर एग्जिस्टेंस में वो हमारे साथ चलेंगे। कम्मा योनि, हमें जिस योनि में बर्थ हो रहा है, आप जानते 31 प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस है, उसमें भी अलग अलग योनियां हैं। तो मनुष्य योनि, पेत योनि, देव योनि, ब्रह्म योनि, निरय योनि, ठीक है। तो इसमें जो हमें बर्थ हो रहा है, जो हम लोग जो जन्म ले रहे हैं, तो किसकी वजह से ले रहे हैं? वो अकुशल और अकुशल कर्म की वजह से हम लोग का एग्जिस्टेंस हो रहा है। और वॉन्डरिंग मतलब हम बार बार इससे संसरण कर रहे हैं, बार बार हम इससे भाग रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, बार बार हमारा पुनर्भव हो रहा है, पुनर्जन्म हो रहा है। कम्मा बंधु, ओनली द होलसम। ओके, तो यहाँ इसका मतलब है कि जो हम हमारे आसपास जो रिलेटिव्स है, जो हमारे माता पिता बने हैं, जैसे आप लोग मेरी फैमिली है, आपसे मैं फिजिकल फॉर्म में नहीं मिली, पर हम लोगों का एक कनेक्शन बन चुका है। हम प्रीवियस बर्थ में कभी ना कभी साथ में थे। अभी हम भंतेजी से देश न सुन रहे हैं, या अभी जितने भी भंतेजी हैं उन्होंने देश न थे, तो इसके पहले भी शायद हम उनसे सुन चुके हैं। तो कोई ना कोई हम लोगों के पिछले प्रीवियस से रिलेटेड है ये। और हमारे जो माता पिता, या कई लोग जो आप लोग मुझे बहन का दर्जा दिए या बेटी का दर्जा दिए हैं, क्यों कई लोग बोलते हैं, हम लोग किसी को मिलकर ऐसा लगता है कि नहीं, ये इन्हें मैं पहले से जानता हूँ। तो ऐसा क्यों? क्योंकि ये हमारा कम्म बंधु, तो पास्ट लाइफ से हमारा रिलेशन है। तो वो भी क्या, किस वजह से? हमारे होलसम एंड अनहोलसम एक्शन ऑफ बींग्स। तो हमारे जो कुशल और अकुशल कर्म की वजह से हम उस हमारे रिलेटिव हमें मिलते हैं, और वो उनके साथ वॉन्डर कर रहे हैं। अस्थि दिनंग का मतलब है कि जो भोजन देते हैं, आर्म्स गिविंग मतलब भोजन का दान करना, ठीक है। जो पिंडपात करते हैं, भिक्षु संघ या वो सन्यासी, तो आप उनको जो दान दे रहे हो, या चिड़ियों को दान दे रहे हो, जो आप भोजन को ऑफर कर रहे हो, तो इसका भी रिजल्ट होता है। ये बिलीव करता है कि हाँ, मैं जो भी दान कर रहा हूँ, मतलब खाने से रिलेटेड जो भी दान कर रहा हूँ, तो इसका कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा। तो उसका मीनिंग ये। फिर नेक्स्ट जो था कि कई लोग लार्ज अमाउंट में दान करते हैं, बहुत अमाउंट में दान करते हैं, पर इसमें भी राइट व्यू होना चाहिए। जैसे मैं दान कर रही हूँ, मैं ना लालच में कर दी कि मेरा नाम हो जाए, मैंने
पंगत लगा दी और सबको दिखाने के लिए, तो वो सही तरह का राइट व्यू नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए कि हम सम्मत दृष्टि के साथ होना चाहिए, रॉन्ग व्यू नहीं। आज भी लोग दान करते हैं, पर उनका इंटेंशन क्या होता था, मेनली आपका इंटेंशन पे डिपेंड करता है। कम्मा पटी सरना, शरण जाना है किसकी, हमारे जो कर्म है, रियल रिफ्यूज। हमें कहा हम लोग ओनली द होलसम एंड अनहोलसम एक्शन ऑफ बीइंग्स आर देयर रियल रिफ्यूज वेरेवर दे मे wander in many existence. No, real repute. Sometimes, if you are get into the trouble, or we repute to our mother, father, teacher, also our हम्म, government, we take a repute. But real repute are our action, wholesome and wholesome. Now, if you always do wholesome, oh, that is my refuge. Wherever I go, I already done good deeds. That is your real refuge. okay. But if someone is doing unwholesome, so it is not good. Now, if he is doing refuse and unwholesome, Wholesome is the some people you know they have done already bad deeds. That is they are a refuge. Oh, I already done. Now I have no good deeds. Oh, so now I have only bad refuge. That is, they are bad refuge, because they have done their only bad deeds. okay, Bindu ji. No, you can choose. Some people choose good deeds, some people choose bad deeds. That is their choice, their life, their refuge. यहाँ पंडित जी जो कह रहे हैं शरण जाना, तो हम लोग अपने कई बार माता, हम लोग जनरली गुरु की शरण जाते हैं, माता पिता की शरण जाते हैं। बट हमारी सही शरण क्या होती है, हम जो एक्शन परफॉर्म करते हैं, हम जो अच्छा कर्म कर रहे हैं, बुरा कर्म कर रहे हैं, हम उसकी शरण जाते हैं। जो व्यक्ति को बुरा करना है, जैसे कोई व्यक्ति की आदत है चोरी करने की, झूठ बोलने की, तो वो झूठ बोलने की, वो बुरे कर्मों की शरण जा चुका है। वो बोलता है कि मेरे झूठ बोलने के अलावा काम होता ही नहीं है। तो उसने अपने सोच के रखा है, मतलब उसको पता नहीं है कि वो एक्शन, तो यहाँ पे वो बार 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 उस एक्शन को रिपीट कर रहा है। तो वो बार बार उस चीज को कर ही रहा है कि उसको होश ही नहीं है वो क्या कर रहा है। और यहाँ पे शील पालन विपश्यना करना, अच्छा रास्ता भी है, बुरा भी रास्ता है। कि हम जब चल रहे हैं, हमें जब इंसान का ये मन योनि मिली है, तो ये हम पे डिपेंड करता है कि हमें कुशल कर्म को करने की, अकुशल कर्म पे हमें किसकी शरण जाना है। कुशल कर्मों की शरण जाने की, अकुशल कर्मों की, हमें मतलब परफॉर्म क्या करना है, हम अपने आप को कैसे बदले, हम किस तरीके से। अगर अकुशल कर्म कर रहे तो तुरंत होश में, हमको होश आना चाहिए कि नहीं, अब हमें अकुशल कर्म नहीं करना है, हमें कुशल कर्म की शरण जाना है। तो कुशल कर्म को हमें धारण करना है, हमें शील की शील शील जो है, शील की प्रैक्टिस करनी है, शील का पालन करना है, समाधि का अभ्यास करना है, विपश्यना का अभ्यास करना है, 10 पारमिता है उसको पूरा करना है। तो ये है शरण किसके जा रहे हैं। तो असली शरण क्या होती है हमारा, ये भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ये होश होना चाहिए। अगर हम कुछ झूठ बोल के, अगर हम बोले कि मेरे झूठ बोलने का कोई काम नहीं है, तो मुझे तो झूठ बोला है, तो हम क्या कर रहे हैं, ये राइट व्यू नहीं है, ये रॉन्ग व्यू है। हम चोरी कर रहे हैं कि बोले अरे मैं किसी की भलाई के लिए चोरी कर रहा हूँ, तो चोरी तो चोरी होती है ना। तो ये आप सही दृष्टि नहीं है, तो मतलब राइट व्यू होना चाहिए। तो ये जो कम्मा योनि, तो आपको ये होश होना, ये क्यों होना चाहिए कि कर्म, मुझे जो योनि मिल रही है, जो मुझे जन्म मिल रहा है, तो मेरे व्यू के अगर राइट व्यू रहेगा तो आप हमेशा अच्छे कर्म करोगे। आपको क्या रहेगा, आप में हीरी और ओतप्तप रहेगा, ठीक है, आप में शर्म रहेगी, आप में आप क्या, आपको शर्म लज्जा रहेगी, अरे मुझे अकुशल कर्म नहीं करना है। आप में क्या, ओतप्तप रहेगा, आप में भय रहेगा कि नहीं हो सकता है कि मेरा नरक पात हो जाए, मुझे निरा योनि मिल जाए, तो कम्मा योनि। तो हमेशा राइट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए अपने आसपास के कम्मा बंधु। तो हमारे आसपास के जो लोग हैं, हमेशा तथागत की वाणी है ना, सेवना च बालानां पंडितानां च सेवना पूजा च पूजनीयानां एतं मंगलमुत्तमम्। तो हमेशा हमें किन की संगत करनी चाहिए, अच्छे लोगों की संगत करना चाहिए। देखिए पास्ट लाइफ में हमने अच्छे बुरे कर्म किए, तो हमारे आसपास सभी तरह के लोग होंगे, पर इस लाइफ में हम पे डिपेंड करते हैं कि हमें क्या चूज करना है। तो ये राइट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इसकी, जो मेरे आसपास जो रिलेटिव है, बंधु का मतलब हो गया यहाँ पे रिलेटिव, तो ओनली द होलसम एंड अनहोलसम एक्शन ऑफ बीइंग्स आर देयर रिलेटिव। तो ये हमारा रिलेटिव है जिससे हम एसोसिएट होते हैं। तो हमारे जो सही रिलेटिव क्या है, हमारे बंधु भी कौन है, हमारे कर्म है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्मा योनि होश होना चाहिए, राइट व्यू होना चाहिए,
kamma bandhu, only the wholesome and unwholesome action of beings are their relative and associate. आपके जो रिलेटिव्स कौन है, आपको ये होश होना चाहिए, यही हमारा हमें कभी किसी मुसीबत में पड़े और आपने अच्छा कर्म किया तो सत्य क्रिया करते हैं ना, सील पे सत्य क्रिया की जाती है। विपश्यना भावना अच्छे कर्म पे सत्य क्रिया की जाती है। जब से अपने चित्त को एकाग्र किया, शुद्ध करने के, उस पे सत्य क्रिया की जाए, तब आपके पुण्य कर्म आपके आते हैं। तो जब आपने किसी का अच्छा किया, कहीं ना कहीं से आपको भी मदद मिलती है। उस टाइम आपका रिलेटिव भी आपके साथ छोड़ देते हैं, पर जो आपके पुण्य कर्म है हमेशा आपको बचाते हैं। पुण्य कर्मों का जो संचय है ये हमेशा आपको आके प्रोटेक्ट करेगा। कई बार होता है कि हम मुसीबत में फंसते हैं, हमें लगता है हम जिंदगी से निराश हो जाते हैं कि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, हमने कुछ अकुशल कर्म किए होंगे, बट कहीं ना कहीं से आपको मदद ही मिलेगी। तो ये जो कम्मा यूनि है और जो कम्मा बंधु, जो रियल हमारे रिलेटिव, वो कौन है? हमारे कर्म है। हम अपने जो एसोसिएट होते हैं, जो हमारे आसपास के जो लोग भी हमें मिल रहे हैं, हमारे कर्मों की वजह से मिल रहे हैं। तो बहुत सोच समझ के अपनी जो दृष्टि है उसको सम्यक रखिए, सम्मा दिट्ठी होनी चाहिए, राइट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। फिर जो है यं कम्मं करिष्यन्ति कल्याणं व पापकानं व तस्य दायदा। यं कम्मं करिष्यन्ति, जो भी आप कर्म करते हैं, कल्याणं या पाप का, अच्छा कल्याण मतलब कुशल कर्म कर रहे हैं या पाप का कर्म कर रहे हैं, वो आपकी दायदा कमा है, मतलब वो आपके दाय वो भविष्य आपका निर्धारित करेंगे। अगर आप इस पे एक्सप्लेन की, बाय बॉडी मतलब काया, वर्बल, वाचा, मेंटल, मानसिक, आप कोई भी कर्म परफॉर्म करते हैं, कुशल या अकुशल, तो ये आप में इनहेरेंट रहेगा। जैसे किसी को आप फर्स्ट कोर्स किया विपश्यना का तो उनको बहुत कुछ मिल गया, किसी को कुछ नहीं मिला, किसी को मेथड ही समझ में नहीं, क्यों? क्योंकि उन्हें पास्ट कर्म का कलेक्शन है, सबका अपना फर्स्ट का अनुभव, कि फर्स्ट कोर्स में ही किसी को ध्यान लग गए, किसी को नहीं लगे। क्यों ऐसा हुआ? वो पास्ट जन्म से वो कर्मों को करते आ रहा है ना, वो अभी हम कर रहे हैं, तो अभी वो करते आ रहे, तो उसका रिजल्ट है। जैसे कोई बहुत इंटेलिजेंट होता है, अभी विपश्यना का भी साइड छोड़ दीजिए, प्रैक्टिकल देखते हैं कि किसी में कोई बोलते ही तो गॉड गिफ्टेड है, कोई प्रैक्टिस नहीं करता, कोई बाय बर्थ कोई बहुत अच्छा स्केच करता है, बाय बर्थ कोई बहुत अच्छा डांस करता है, बाय बर्थ बहुत इंटेलिजेंट होता है। क्यों? क्योंकि वो पास्ट से वो चीजें करते आ रहा है, तो इसलिए वो इनहेरेंट हो गई वो क्वालिटी उसमें। जैसे मैंने नीम का बीज बोया और नीम का पेड़ निकलेगा, तो उसमें जो नीम का बीज बोया तो कड़वापन है ना, तो इनहेरेंट इसकी क्वालिटी कड़वेपन की, जो जो पेड़ होगा फिर उससे जो बीज होंगे, तो फिर उसका जो बीज कब डलेगा, फिर नया पेड़ लगेगा, तो वो कड़वेपन की क्वालिटी तो इनहेरेंट है ना, वो तो जाती रहेगी। और उस एक बीज से कितना पेड़ बनेगा, उस पेड़ के कितने बीज गिरेंगे और उससे कितना संसरण होगा उस पेड़ का, ये हम नहीं जानते ना। इसी तरह हम मनुष्य योनि है, तो ये जो दायदा कम्मा है, ये हमें इस तरीके से लेके जाएगा, तो हमें होश होना चाहिए, राइट व्यू होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। अति दिन्नम मतलब आप जो कुछ दे रहे हैं, तो कॉज एंड रिजल्ट, कर्म और उसका विपाक, कॉज एंड इफेक्ट जो है, पटिसमुप्पाद, तथागत ने इसको पटिसमुप्पाद कार्य कारण सिद्धांत हिंदी में कहते हैं इसे। तो अति दिन्नम, तो जो भी आप दे रहे हैं, चाहे आप भोजन दीजिए, जो भी आप दे रहे हैं, आप उसको देंगे तो उसका अति यथंग, अगर कोई लार्ज स्केल में कोई अमाउंट कर रहा है, दान कर रहा है, पर दृष्टि सम्यक होना चाहिए, दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए। अरे मैं तो लंगर लगा, जैसे चुनाव में कोई नेता है, अनाउंसमेंट कर दिया कि उसको चुनाव जीतना, तो गरीबों को दान कर रहा है, देखिए उसका रिजल्ट आएगा, उसका चित्त जो है उसका रिजल्ट मिलेगा, पर उतना अच्छा नहीं मिलेगा। अगर कुशल चित्त से आप करेंगे, अगर कुशल चित्त से, शुद्ध चेतना से आप किसी को भी एक छोटी सी चॉकलेट भी देंगे, तो उसका फल ज्यादा होगा। तो यहाँ पे चित्त की चेतना डिपेंड करती है, राइट व्यू होना चाहिए कि मैं जो कर्म कर रहा हूँ, यान संपयुक्तंग चित्त होना चाहिए, यान विपरीतंग चित्त के साथ आपको नहीं करना है। तो यान संपयुक्तक होना चाहिए कि अलोभ, अदोष, अमोह तीनों चीजें होनी चाहिए, यान संपयुक्तंग चित्त के साथ आपको करना चाहिए। ना दिट्ठिगत संपयुक्तंग होना चाहिए, ना दिट्ठिगत विपरीतंग होना चाहिए, ये दोनों तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। यान संपयुक्तक चित्त से कुशल कर्म करना है हमें। अति तंग, तो ऑफरिंग जो कर रहे हैं लार्ज स्केल में, कई लोग है ना बहुत बड़े डोनेशन करते हैं, कई लोग हॉस्पिटल खोलते हैं, कई लोग कुएं बनाते हैं, पानी के लिए तालाब बनाते हैं, पौंड बनाते हैं, शुद्ध चित्त से करते हैं, तो उसका भी रिजल्ट है। यहाँ पे देने की बात आती है, यथा हुतम,
कई लोग छोटे अमाउंट्स में करते हैं, अगर कुशल चित्त से करेंगे, जैसे 8 फूल भी मतलब श्रद्धा से आपका देना ज़रूरी है। आपकी चित्त की चेतना क्या डिपेंड करे, आप चित्त की चेतना से छोटे से पक्षी को भी आप खा दाना डाल रहे हैं, तो उसका भी पुण्य मिलेगा। आप डॉगी को, जानवर को शुद्ध चित्त से खिला रहे हैं, बिना किसी के कि हाँ, मुझे भी कुछ मिले, नहीं। आप बस खिलाइए, एक प्रेम, एक करुणा से, मैत्री से उन्हें खिलाइए, तो उसका भी रिजल्ट मिलेगा। तो इसका मीनिंग ये है, अत्थि सुखं दुखंतं कम्मानं फलं विपाको। देखिए यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अत्थि सुखता दुखतानं कम्मानं फलानं विपाको, कि आप जो कर्म करते हैं वही सुखद, मतलब कुशल कर्म, दुखतानं, दुख, किसी को आप दुख दे रहे हैं, अकुशल कर्म कर रहे हैं, तो उसका फल बनेगा, उसका रिजल्ट मिलेगा, उसका विपाक बनेगा। तो इसका मीनिंग ये है, अत्थि माता, अपनी माँ को रिस्पेक्ट देना है। जो इंसान अपनी माता को दुःख देता है या माता की हत्या करता है, ये आप लोग जानते हैं कि डायरेक्ट उसका नरकपात होता है। कोई भी इस चीज़ को नहीं रोक सकता, उसका निरयपात होगा ही। नरकीय योनि में जाना है तो माता को रिस्पेक्ट देना, माता की सेवा करना, क्योंकि 9 महीने उन्होंने हमें कोख में पाली है। अपने बच्चे को पालने के लिए क्या नहीं करते हैं माता-पिता। हम आजकल एक ट्रेंड चला है ना कि माता-पिता को छोड़ देते हैं, वृद्धाश्रम में डाल देते हैं, बुढ़ापा आता है, बोलते हैं अरे ये तो सठिया गए हैं, सेवा नहीं करते जब उनको बीमारी होती है। तो वो क्या है? ये रॉन्ग व्यू है ना, ये अच्छी चीज़ नहीं है, ये इंसानियत भी नहीं है यहाँ पे। तो अत्थि माता, तो आपको ये होश होना चाहिए, राइट व्यू, मतलब सम्मादिट्ठी होना चाहिए कि हमें माता की सेवा कैसे करनी चाहिए। तो यहाँ पे ये चीज़ बताई है। आप माता के साथ अच्छा करेंगे, उसका अच्छा रिज़ल्ट होगा, बुरा करेंगे तो आप खुद जानते हैं कि नरक होगा। अत्थि पिता, तो सेम चीज़ पिता के लिए भी है कि किस तरीके से माता-पिता उपट्ठानम्, तो माता-पिता की सेवा करना है, कि माता-पिता ने हमारा भरण-पोषण किया, हमें अभी तक पाला है। तो अब हमारी ज़िम्मेदारी, हमारा कर्तव्य है कि हम किस तरीके से, तो तथागत ने बोला है कि जिनके माता-पिता शील में स्थापित नहीं है, उनको शील में स्थापित कर दीजिए। जिनके माता-पिता समाधि में स्थापित नहीं है, समाधि में स्थापित कर दीजिए। जिनके माता-पिता संयम में स्थापित नहीं है, तो उनको किस तरीके से हम ये धम्म के मार्ग में लगा दें, विपश्यना का मार्ग मिल जाए, क्योंकि माता-पिता के ऋण से हम कभी मुक्त नहीं हो सकते। उनके प्रति हमेशा हमें कृतज्ञ होना है कि इतने प्यार से उन्हें हमें बड़ा किया है। तो ये, फिर अत्थि सत्ता उपातिका, इसका मीनिंग ये है कि जैसे इंडिया में मैक्सिमम लोग बिलीव नहीं करते कि 31 प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस होते हैं, पर ये एक सच्चाई है कि यहाँ पे जो बर्थ होता है, प्रेत योनि में भी होता है, देव योनि में भी होता है, शक्त जो इंद्र जिसको बोलते हैं, जो 6 देवलोक है, उसमें भी बर्थ होता है। अब ब्रह्मा योनि में भी बर्थ होता है, जिसको हम लोग नहीं देख सकते। उसके लिए आपको वो पावर चाहिए। समाधि का अभ्यास कीजिए, उससे वो आप चीज़ को मिल जाएगी। वो पंचम ध्यान आपको लगेगा तब। तो ये चीज़ एग्ज़िस्ट करती है। कई लोग बिलीव नहीं करते। इस इंडिया में कई लोग हैं जो इस चीज़ पे बिलीव नहीं करते। जो लोग बोलते हैं कि बस इसके बाद लाइफ नहीं है। ऐसा नहीं होता है, होती है लाइफ। अथियम अयंग लोको, तो यहाँ पे भी ये विजिबल एग्जिस्ट कर रहा है, ये आप लोगों को तो ये विजिबल एग्जिस्ट कर रहा है। देखिए हम लोग अभी मनु मनुष्य योनि में हम लोग किसको, अभी हम क्या देख सकते हैं? अभी हम सिर्फ जानवरों को देख सकते हैं। अभी हमारी इतनी ही जो लिमिट है, हम अभी जानवर योनि तक सीमित है, पर जब हम समाधि का अभ्यास करेंगे, विपश्यना का अभ्यास करेंगे, तो आपको अनुभव होगा, तो आप इन्हें भी देख सकते हैं। तो ये अस्थि, तो ये जो लोक है, अभी तो आप इस लोक को देख रहे हो और अपने आप को देखो कि अभी ये मेरा लोक है, अभी मेरा ये लोक एग्जिस्ट है। मतलब यहाँ पे अपने कर्म संस्कारों को भी देखे कि लोक एग्जिस्ट है, तो मैं ऐसा क्या करूँ कि मैं ये संसार से निकल जाऊँ? तो कुशल कर्म करूँ, तो इस चीज़ को एग्जिस्ट कीजिए। अपने आप को भी देखिए, जो 3.5 हाथी का है, उनके गुरुजी बोलते हैं ना 3.5 हाथी का है, यही इसी लोक में सब कुछ है। ये 3.5 हाथ की कायम पर 31 लोक बसे हुए हैं। तो अपने आप को भी जानिए कि देखिए ये मेरा लोक है, ये मेरा संसरण हो रहा है, मुझे तो कुशल कर्म करना है ताकि अरहंत की अवस्था प्राप्त हो सके। अरहंत नहीं तो श्रोतापन, श्रोतापन नहीं तो एटलीस्ट टू श्रोतापन, इतना नहीं तो इतना कर्म कर लो कुशल कर्म कि निरय गति से बच सको। तो अति एंग्लो की जो विजिबल वर्ल्ड आपको दिख रहा है, तो अभी आपको विजिबल वर्ल्ड में आप अपने इंसानों को देख रहे हो और किसको देख रहे हो? ये पेड़ पौधे ये सब दिख रहा है आपको, और जो बोलते हैं हम लोग जानवर, चींटी, ईट, पतंगा, ये जो दिखते हैं जल में रहने वाले, थल में रहने वाले, इन प्राणियों को आप देख रहे हैं, ये हमारे आसपास है। अति परोलोको, ये लोग तो है, इसके बाद परलोक भी एग्जिस्ट करता है। तो परलोक में क्या आ गया? वही 6
आपके जो लोग हैं देवलोक आ जाएंगे, और 20 जो है ब्रह्मलोक, 16 रूप ब्रह्मलोक और 4 अरूप ब्रह्मलोक, ये भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये भी आपको देखना, ये एग्जिस्ट कर रही है, इसकी भी आपको सम्मादित्य होनी चाहिए, सच्चाई से ये सत्य है, इसको आप नकार नहीं सकते। अत्थि लोके समना ब्राह्मणा Samana समागत Paramana Samagada समा Samapatipana Ye हम्म Imancha Logan Parancha हम्म Logan Sayan हम्म Apinya Sajikatawa Pawitindi. हम्म ओके। तो इसका मीनिंग ये है कि अभी इस लोक में दे आर अभी भी एग्जिस्ट करते, कौन एग्जिस्ट करते हैं? ह्यूमन, जैसे हम लोग ह्यूमन है, भिक्खु है, भिक्खुनिया है, जो प्रैक्टिस क्या कर रहे हैं, रियल धर्म की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग क्या करें, हम शील का पालन कर रहे हैं, समाधि का अभ्यास करो, विपश्यना को, तो आगे चल के हम अरहंत की अवस्था को प्राप्त करें। देव लोग भी है, देव लोग भी करते हैं कि धम्म की प्रैक्टिस करते हैं, धम्म का श्रवण करते हैं। तो आप लोगों को ये चीजें क्लियर है। तो अत्थि लोके समना ब्राह्मणा समागता सम्मा पटिपन्ना, तो श्रमण और ब्राह्मण, तो ठीक है, जो श्रमण है, श्रमण मतलब जो भिक्खु हो गए, भिक्खुनी हो गए, कुछ सन्यासी भी हो गए, तो वो लोग जो रियल धर्म की प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब शील समाधि प्रज्ञा का अभ्यास करके अपने चित्त को शुद्ध कर रहे हैं, तो वो इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रहे हैं और अरहंत की अवस्था को प्राप्त कर रहे हैं। ये आपको जानना है कि अभी, अरे ये अट्ठपुग्गल जो बोलते हैं, सोतापन, सद्दागामी, अनागामी, अरहंत, और जो शील समाधि का अभ्यास कर रहे हैं, ऐसे सतो भी है, ऐसे भिक्खु है, भिक्खुनिया है, उपासक है, उपासिका है, हम लोग भी तो है, हम भी तो धम्म की प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम धम्म के मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। राइट व्यू ऑफ फोर नोबल ट्रूथ, तो दुख यानम, तो दुख है, तो दुख का आप जानते हैं कि 8 गाथाओं में बता दिए है कि जाति भी दुख, जरा भी दुख, मरणं व्याधि भी दुख, मरणं भी दुखं, अप्यये संपयोगो दुख, पिये विपयोगो दुख, यम पेच्छति न लभते दुखं, संखितेन पंच उपादान खंदा दुख। तो इसको भी हमने डिटेल में देख लिया कि दुख क्या है। जन्म भी दुख है, मरणं भी दुख है, व्याधि भी पहले चीज को मानिए कि दुख है, ये सच्चाई है। और संखितेन में क्या बोला है, पंच उपादान खंड दुख, ये जो नाम रूप के प्रति जो अटैचमेंट है, जो सोनाली है, सोनाली को अपनी बॉडी के, बॉडी फिजिकल बॉडी रूप, और जो चित्त चैतसिक जो है, तो वेदना संज्ञा संस्कार और विज्ञान, इसके प्रति जो अटैचमेंट है, आसक्ति है, तो उसको हम क्या कहते हैं कि ये दुख है, इसके प्रति जो अटैचमेंट, ये दुख है। फिर पटिसमुत्पाद दुख है, दुख का कारण है, तो ये भी हम जानते हैं, द्वितीय और आर्य सत्य। तृतीय कि निर्वाण की अवस्था प्राप्त की जा सकती है, दुख निरोध यानंग, दुख निरोध मतलब तृष्णा का क्षय होते ही, तृष्णा जैसे नष्ट हो गया, विद्या नष्ट हो गया, आपको निर्वाण मिलेगा, आनंद की अवस्था प्राप्त होगी, ये भी एक सत्य है। और दुख निरोध गामिनी पटिपदा, तो आर्य अष्टांगिक मार्ग, जो सम्मादित्य सम्मा संकल्प हो, जो मिडिल पाथ है, 8 फोल्ड पाथ, ये है, इस पे चलकर, कदम कदम चलकर, इसको फॉलो कर कर हम अरहंत की अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। तो दुख निरोध गामिनी पटिपदा ज्ञान, तो इसका मीनिंग ये है। Bhavadu Sabha Mangalam Rakhandu Sabha Devada Sabha Buddha Nubhavina Sabha Dhamma Nubhavina Sabha Sangha Nubhavina Sada Sukhi Pundu De हाँ, Sadhu Sadhu साधु, Sadhu. थैंक यू सो मच Bhante ji for your valuable time and this Deshna. Thank you so much. I will arrange maybe next Sunday. I will inform you. Okay, Okay, thank you so much Bhante ji. Vandami okay. Bhante ji. Thank you so much.